चलिए, तो राफेल की एंट्री हो चुकी है। फिर से आपको लिए चलते हैं, कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं राफेल के शौर्य से जुड़ी। And constraints due COVID. He leaves his tower firma, taking the load of 8 tons strapped on his back with 9 tons of thrust provided by reliable GE404 engine. Long ferry in order to rapidly ferry the aircraft back home. I am especially grateful to Her Excellency, Madame Florence Parly, Minister for the Armed Forces of France, for her unstinted support and for taking out time to be with us here today. Thank you very much. Thank you very much. Undoubtedly, this aircraft induction would not only give the Indian Air Force immense op capability, but would become a crucial milestone in the growth of our strategic relationship. To conclude, I would like to thank all the dignitaries and media present here today on this historic occasion. My compliments to the AOC-INC Western Air Command, AOC Ambala and their entire teams. Commanding Officer of the Golden Arrows, Group Captain Harkirat Singh and his entire team for hard work and professionalism displayed in order to operationalize this aircraft quickly. And this effort needs to continue as we bring in the balanced aircraft and the air crew and ground crew trained on the aircraft. I have no doubt that the aircraft capabilities combined with the commitment and zeal of the Golden Arrows would make a lethal combination, and I expect the Golden Arrows to intimidate and dominate whenever and wherever employed. Jai Hind. We now request Shri Rajnath Singh, Honorable Raksha Mantri, to kindly address the gathering. Madam Excellency, French Minister for Armed Forces, Mrs. Florence Parly, Minister of State for Jal Shakti, Shri Ratan Lal Ji Kataria, Home Minister Haryana Government, Shri Anil Vij, Chief of Defence Staff, Shri Bipin Rawat, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal R.K.S. Vadoria, Defence Secretary, Shri Ajay Kumar, Secretary Defence Production, Shri Raj Kumar, Secretary Defence Finance, Mrs. Gargi Kaul, Secretary DRDO, Sri Satish Reddy, Ambassador of France, India, Mr. Emmanuel, French Vice Chief of Air Force, Air General ERC, Atule, Special Secretary and DG Acquisition, Sri Apurva Chandra, Air Chief Marshal B.S. Dhanova, retired, distinguished members of the French delegation, senior officers of Armed Forces of India and France, Indian and French friends from media. आज राफेल इंडक्शन सेरेमनी में सर्वप्रथम मैं फ्रांस की ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली का अपनी ओर से और अपनी देशवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस इवेंट में आपकी ऑगस्ट प्रेजेंस वर्षों से चली आ रही हमारी मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप को दर्शाती है। इंडियन एयरफोर्स में अत्याधुनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट राफेल के इंडक्शन के अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है और हम सब देशवासियों के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
साथियों, राफेल का इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को भी यह दर्शाता है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, रणनीतिक या साझेदार रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारे आपसी संबंधों के आधार हैं। आज दुनिया में सुरक्षा के साथ साथ इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दे नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इनका लगातार सामना करते हुए हम दो बड़े लोकतंत्र, एक अस्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे हैं। हमने न चलिए, और अब बात अजय माकन के अजय संवाद की। आज जयपुर में माकन का फीडबैक कार्यक्रम का दूसरा दिन जयपुर में है। आज जयपुर संभाग के नेताओं से माकन का संवाद, सत्ता संगठन में तालमेल को लेकर पीसीसी में मंथन। तो अजय माकन, हालांकि वक्त 11 बजे का था उनका अजय संवाद शुरू होने का, लेकिन तय वक्त से कुछ देरी से फीडबैक कार्यक्रम की शुरुआत अजय माकन की। जयपुर शहर देहात से सबसे ज़्यादा नेताओं को बुलाया गया है। करीब 80 नेता जयपुर शहर से, जयपुर देहात से करीब 70 नेताओं को बुलाया गया है। संवाद कार्यक्रम में शामिल पायलट समर्थक नेता भी होंगे। फीडबैक कार्यक्रम महामंथन, अजय माकन का सत्ता संगठन को लेकर ये महामंथन हो रहा है। अलग अलग नेताओं से, अलग अलग जगहों के कई नेता आज पीसीसी पहुंचे हैं। उनसे अजय माकन एक एक कर बातचीत करेंगे, और सुबह जैसा मेरे सहयोगी अब से कुछ देर पहले दीपक व्यास बता रहे थे पीसीसी के बाहर से कि कई नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दीपक हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। दीपक, महामंथन शुरू हो चुका है। देखिए सुमित, बिल्कुल जो कांग्रेस का महामंथन है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है, और जो अजय माकन है प्रभारी, वो उसके अलावा पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और जो प्रभारी हैं यहाँ के प्रभारी सचिव विवेक बंसल, वो तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और कांग्रेस के जो जयपुर शहर के नेता हैं उनसे यहाँ पर फीडबैक लिया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ये यहाँ पर जो फीडबैक का कार्यक्रम है वो शुरू हुआ है। सबसे पहले जयपुर शहर का नंबर था, हालांकि 10:15 बजे का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन थोड़ा देरी से ये जो बैठक थी वो शुरू हुई। करीब 11 बजे बाद में जो फीडबैक की बैठक है वो यहाँ पर शुरू हुई है, और यहाँ पर एक तरीके से कार्यकर्ताओं को कुछ जो निर्देश संगठन की तरफ से वो दिए जा रहे हैं। इसके अलावा उनसे जो फीडबैक है संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, किस तरीके से, चूंकि कई चुनाव जो है वो आने वाले वक्त में कांग्रेस के सामने आएंगे, उनको लेकर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा किस तरीके से जो लगातार एक तरीके की बातें उठती रही हैं कि कांग्रेस के भीतर एक तरीके से जो खाई है, धड़ों में जो कांग्रेस बढ़ जाती है, उन धड़ों को किस तरीके से खत्म किया जाए, पार्टी एकजुट होकर एक जाजम पर किस तरीके से आए, इन तमाम चीजों पर जो मंथन है वो यहाँ पर इस बैठक के दौरान रहने वाला है। और ये जो बैठक है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जयपुर शहर की चूंकि बैठक है, लेकिन जयपुर शहर की इस बैठक में आज की बात की जाए तो जो मुख्य सचेतक है महेश जोशी, जो कि हवामहल से विधायक हैं, वो यहाँ पर इस बैठक में नहीं आए, क्योंकि उनका पिछले दिनों उनका जो पीएसओ है वो पॉजिटिव पाए गए थे, तो ऐसे में उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर रखा है खुद के घर में, तो ऐसे में वो नहीं आए। इसके अलावा प्रताप सिंह खचरियावास, जो जयपुर के सिविल लाइन से विधायक है, मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, वो भी इस बैठक में नहीं आए, क्योंकि पिछले दिनों वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, और उसके बाद में हालांकि वो नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आ चुकी है, उन्हें आरयूएचएस हॉस्पिटल से भी छुट्टी मिल चुकी है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर वो खुद के घर में क्वारंटीन है, तो ऐसे में वो भी इस बैठक में नहीं आए। बाकी उनके अलावा जो तमाम जो नेता हैं, चाहे वो पार्टी के प्रत्याशी रहे हों विधानसभा चुनाव में, वो इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा पहले जो विधायक रह चुके हैं वो भी इसमें मौजूद है। इसके अलावा जो पार्टी के जो तमाम जो जयपुर शहर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो कि पीसीसी के सदस्य भी हैं या फिर जो निवर्तमान पदाधिकारी हैं, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया, और उनसे तमाम लोगों से फीडबैक इस बैठक के दौरान यहाँ पर लिया जा रहा है। ये फीडबैक लेने के बाद जो 3 सदस्य कमेटी गठित की थी, उन तक ये फीडबैक पहुंचाया जाएगा। दीपक,
देखिए सुमित, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। चूंकि एक तरीके से प्रभारी जब अजय माकन को बनाए गए हैं तो ऐसे में उनके ऊपर एक तरीके से ये उनका एक तरीके से नैतिक मजबूरी भी हो जाती है कि जब उनको प्रभारी पद की जिम्मेदारी दी गई है तो वो यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद में लोगों से जो मुलाकात है, पार्टी के पदाधिकारियों से चर्चा है, वो यहाँ पर करें। तो ऐसे में ये उनकी उस कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। जो सदस्य 3 सदस्यों की जो कमेटी बनाई गई थी समन्वय को लेकर, जो पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ था कांग्रेस में, उसको लेकर जो कमेटी बनाई गई थी, वो एक तरीके से अजय माकन खुद भी उस कमेटी में शामिल है। तो ऐसे में जो फीडबैक है कुछ हद तक तो वो भी यहाँ पर देंगे, लेकिन जो कमेटी है वो भी आने वाले दिनों में चर्चा करेगी। जो फीडबैक आएगा उस पर जो आगे के फैसले हैं वो यहाँ पर लिए जाने हैं। उद्देश्य तो यही है ना दीपक, कि सत्ता संगठन के बीच तालमेल बनाया जाए। जो पिछले दिनों तस्वीर आई थी, मनमुटाव मतभेद जो देखने को मिले थे, उनको कैसे दूर किया जाए, इसका मकसद तो यही है ना। देखिए सुमित, इसके मकसद दोनों है। इस बैठक के, इस फीडबैक कार्यक्रम के मकसद दोनों है कि जो जिस तरीके से हमने पहले भी बताया कि जो खाई यहाँ पर वो पैदा हो गई थी उसको दूर किया जाए। इसके अलावा संगठन को जिस तरीके से वापस से खड़ा करना है, क्योंकि प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक संगठन को कांग्रेस की तरफ से वापस खड़ा किया जाना है। तो ये उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। प्रभारी, चूंकि अजय माकन को नई जिम्मेदारी मिली है प्रभारी पद की, तो ऐसे में लंबा वक्त उनको यहाँ पर काम करना है, अगले विधानसभा चुनाव तक तो निश्चित तौर पर करना ही है। तो ऐसे में वो किस तरीके से, उनकी भूमिका क्या रहे, इन तमाम चीजों को लेकर वो पूरी की पूरी एक रिपोर्ट तैयार करने में लगे और वो उस रिपोर्ट को आलाकमान को भी बताएंगे, यहाँ की परिस्थितियों से भी अवगत कराएंगे। और इसके अलावा जो कमेटी है वो भी इन्हीं तमाम फीडबैक के बाद में कुछ फैसले उसको लिए जाने हैं, उनमें ये यहाँ की जो पूरी कवायद है वो भी सहायक साबित होगी। अच्छा, सुबह आप बता रहे थे अर्चना शर्मा पहुंची हैं, और कौन कौन से ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जो इस वक्त मौजूद हैं वहां पर? सुमित, देखिए, हवामहल विधानसभा से पूर्व विधायक रह चुके हैं ब्रजकिशोर शर्मा, वो यहाँ पर आए हुए हैं। अर्चना शर्मा मालवीय से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी 2013 में भी और 2018 में भी, हालांकि दोनों बार उन्हें हाथ लगी है, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो जो दूसरे नेता सीताराम अग्रवाल विद्याधर नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे, वो इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा वो तमाम नेता जो कि जयपुर शहर से ताल्लुक रखते हैं वो इसमें मौजूद हैं, चाहे वो बात किशनपोल के विधायक अमीन कागजी की हो या फिर जो दूसरे विधायक हैं उन तमाम लोगों की बात हो, वो तमाम लोग यहाँ पर हैं। और एक तरीके से जो फीडबैक है वो उनकी तरफ से यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसा हमने पहले भी बताया कि न केवल प्रत्याशी बल्कि जो दूसरे लोग हैं जो कि पीसीसी के पदाधिकारी भी रहे हैं, अभी निवर्तमान पदाधिकारी हैं, तो ऐसे में उनको भी इससे बुलाया गया जो कि जयपुर से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि पीसीसी के मेंबर हैं वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं, जयपुर शहर से ताल्लुक रखने वाले। कब तक अब ये मंथन चलेगा, ये चर्चा चलेगी, ये संवाद चलेगा? देखिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि लगभग जयपुर शहर का जो संवाद है वो 45 मिनट के आसपास चलेगा, क्योंकि पहले जब 10:15 बजे का वक्त तय किया गया था तो वो 11 बजे तक चलनी थी जयपुर शहर की बैठक। उसके बाद में 11 बजे से जयपुर देहात की बैठक शुरू होनी थी। चूंकि बैठक की देरी से शुरू हुई है तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ देर ये बैठक चलेगी, लगभग 45 मिनट तक, पौन घंटे तक जो चर्चा है, जो मंथन का दौर है, वो यहाँ पर इस बैठक के दौरान चलने वाला है। ठीक है दीपक, 45 मिनट आप बता रहे हैं बैठक होगी, मंथन चलेगा, और कई प्रमुख चेहरे इस बैठक में शामिल भी हुए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास नहीं है यहाँ पर, और भी कई लोग हैं जो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। लेकिन क्या आपको हाव भाव देखकर क्या लग रहा है, जो यहाँ पर नेता पहुँचे उनके हाव भाव देखकर क्या लग रहा है? कुछ अब उनके अंदर जोश हाई हुआ है? देखिए सुमित, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जो खुद कांग्रेस के भीतर, न केवल जयपुर में बल्कि तमाम जगहों पर इस तरीके की स्थितियां सामने आई हैं कि उनको अपनी जो बात थी कई कार्यकर्ताओं को, कई नेताओं को, वो अपने नेताओं तक पहुंचानी होती है। तो ऐसे में आज की बैठक उन नेताओं के लिए बेहद फायदे का सौदा साबित होगी कि उन्हें जो अपनी पीड़ा है वो यहाँ पर वो बता सकेंगे। अभी जब ये बैठक शुरू नहीं हुई थी उससे पहले सुरेश मिश्रा, जो कि कांग्रेस के प्रदेश सचिव रहे हुए हैं, निवर्तमान सचिव है अभी, और इसके अलावा वो 2008 के चुनावों के अंदर सांगानेर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। वैसे उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने ऑन कैमरा वो ये कहकर गए कि हम इस तरीके का सुझाव देंगे कि किस तरीके से जब सरकार कांग्रेस की आ गई है तो ऐसे में संगठन की भागीदारी भी उसमें हो, जो कार्यकर्ता है उनकी भागीदारी भी उसमें, इस तरीके के सुझाव हम देंगे। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की मोटे तौर पर यदि बात की जाए तो इसी तरीके की बात सामने आती है, चाहे वो अजमेर की बात की जाए, चाहे वो जयपुर की बात की जाए, या राजस्थान के तमाम जो 33 जिले हैं उनकी बात की जाए। इसी तरीके के सुझाव जो कार्यकर्ता हैं वो सामने देते हैं कि
जब सरकार बन चुकी है तो ऐसे में जिन लोगों ने काम किया उनकी भागीदारी भी इसमें हो, कार्यकर्ता की, आम कार्यकर्ता की भागीदारी भी हो, जो किसी पार्टी किसी धड़े से ताल्लुक नहीं रखता है, वो सिर्फ निष्पक्ष होकर पार्टी के लिए काम करता है, तो ऐसे में उनकी भागीदारी भी होनी चाहिए। तो ऐसे में ये तमाम नेता जो भले ही चाहे उन्हें टिकट नहीं मिल पाया हो, उन्होंने चुनाव न लड़ा हो, लेकिन वो बतौर पदाधिकारी काम कर चुके हो या अपने कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक लेकर वो यहाँ आए, तो ऐसे में वो इस तरीके की डिमांड यहाँ पर जरूर रख सकता है। सत्ता और संगठन को नया स्वरूप देना है, नए तरीके से अब फिर से उन्हें खड़ा करना है, उसको लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी। कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे होंगे जिस पर फोकस अजय माकन करने वाले हैं, आज किन किन लोगों की बात प्रमुख रूप से मायने रखी जाएगी इस फीडबैक के दौरान? देखिए, कांग्रेस शुरुआत से ही कहती आई है कि जो फीडबैक के दौरान जो सलाह, चाहे वो कार्यकर्ता दें, चाहे वो पूर्व पदाधिकारी दें, चाहे वो विधायक दें, चाहे वो मंत्री दें, सभी लोगों की कांग्रेस में पूरी बात सुनी जाती है। इस तरीके की बातें कांग्रेस के तमाम नेता, प्रभारी, वो इस तरीके की बातें कहते हुए भी आए हैं। तो ऐसे में जो बैठकों का दौर जो चला है, फीडबैक बैठकों का, तो ऐसे में सलाह तो इनकी जो एक तरीके से सुनना तो सबको यहाँ पर पड़ेगा। अब उसे किस हद तक अमली जामा पहना जाता है। आखिरी सवाल दीपक, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। हालांकि अब खेमेबाजी की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब पहचान ही ये बन गई है, तो कहा भी क्या जा सकता है, क्या सचिन पायलट खेमे के लोग यहां पर मौजूद हैं, विधायक यहां पर मौजूद हैं? देखिए, उन 19 विधायकों के अंदर अभी जयपुर शहर के अंदर कोई मौजूद नहीं, जो कि सचिन पायलट के साथ में दिल्ली में थे। उन 19 विधायकों में से कोई विधायक अभी यहाँ पर शामिल नहीं है, क्योंकि जयपुर से कोई विधायक वहां पर नहीं था। तो ऐसे में अब जो आने वाला जो जयपुर देहात की बैठक होगी, उसमें निश्चित तौर पर जो उन वहां से जुड़े हुए विधायक थे वो जरूर इसमें शामिल हो सकते हैं। जयपुर शहर की बैठक चल रही है, जयपुर देहात की जब बैठक होगी, जयपुर ग्रामीण की जब बैठक होगी, उसमें वो विधायक शामिल होंगे, क्योंकि अब खेमेबाजी की बात कहीं नहीं है। शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 बजे वीसी के जरिए बैठक लेंगे। केवलादेव सेंचुरी को लेकर यह बैठक होगी। वन मंत्री सुखराम बिश्नोई समेत कई अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे, वीसी के जरिए जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वन विभाग के वरिष्ठ अफसर भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 बजे बैठक लेंगे, वीसी के जरिए ये बैठक होगी। केवलादेव सेंचुरी को लेकर मुख्यमंत्री की अहम बैठक, वन मंत्री सुखराम बिश्नोई समेत कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, केवलादेव सेंचुरी को लेकर सीएम की बैठक, क्या कुछ रहने वाला है बैठक में? बोर्ड की है जो 12 बजे होने वाली है और उसमें लंबे समय बाद ये बैठक हो रही है। तो बहुत सारे जो विकास से जुड़े हुए एजेंडे हैं स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में, उनको मंजूरी दिए जाने के पूरी संभावना है। साथ ही जो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए एजेंडे हैं उनको भी इस बैठक में रखा जाएगा। 1 बजे केवलादेव सेंचुरी को लेकर के भी अलग से बैठक रखी गई है, जिसमें केवलादेव के को लेकर के कुछ जो प्रगति रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी और आगे के जो काम है उनको लेकर के भी इसमें विचार किया जाएगा। तो दोनों जो बैठकें हैं उनमें सबसे अहम बैठक है जो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की होने वाली है। इसमें कई एजेंडे हैं जिन पर आज मंजूरी मिलेगी। जी ठीक है, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको दौसा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां हेल्थ गाइडलाइन की सीख देने वाला चिकित्सा महकमा खुद लापरवाह नजर आ रहा है। जिला अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में मरीजों का जमावड़ा लग गया है, जिसके चलते जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। मरीजों को ठीक ढंग से इलाज भी नहीं मिल पा रहा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है। ऐसे में सवाल ये कि अगर चिकित्सा महकमा ही लापरवाह रहेगा तो मरीजों का क्या होगा?
अभी मौसमी बीमारियों की वजह से चिकित्सालय में मरीजों की आवक बढ़ी है और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को समझाया जा रहा है कि भाई दूर दूर रह के पर्चियाँ कटवाएं। थोड़ी बहुत भीड़ है पर लोगों को समझाया जा रहा है। और बाड़मेर के बालोतरा उपखंड में अवैध खनन जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में खनन माफिया अवैध खनन कर पहाड़ों को खोखला कर रहे हैं। बालोतरा उपखंड के थोब, असाड़ा, आसोतरा, मेवानगर गांव की पहाड़ियों में लीज धारक के साथ अवैध खनन माफिया भी अंधाधुंध खनन कर चांदी कूट रहे हैं। इन पहाड़ियों से बिना ई रवाना के रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर और ट्रक में पत्थर भरे जा रहे हैं, जिससे रोजाना सरकार को लाखों रुपयों की चपत लग रही है। पूरे मामले में खनन विभाग और पुलिस की मिलीभगत भी साफ नजर आ रही है। खबर जैसलमेर से। जैसलमेर में एक निजी बस बेकाबू होकर पलट गई। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आपको बता दें कि बस पारेवर गांव से जैसलमेर जा रही थी। वहीं बरसात के कारण सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए। बस का टायर फंस गया, जिससे हादसा हो गया। झालावाड़ के असनावर थाना क्षेत्र में नदी में नहाने गई 2 नाबालिग लापता हो गई। दोनों बच्चियों के कपड़े और चप्पल नदी किनारे मिलने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया है। वहीं ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम और गोताखोरों को मौके पर बुलाया गया। फिलहाल बच्चियों की नदी में तलाश जारी है। हाड़ौती के बर्ड वॉचर मायूस हो रहे हैं। दरअसल राजपुरा गांव के बबूल के पेड़ों पर पेटेंट स्टार्क पक्षियों की चहचहाट अब सुनाई दे रही है और ना पक्षी नजर आ रहे हैं। ग्रामीण तालाब के पाल पर इकट्ठा होकर पेटेंट स्टार्क पक्षियों का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीण इस इंतजार में है कि पक्षियों की उड़ान से रौनक फिर से लौट सके। तो इन पक्षियों का ये हो रहा है। ये क्या है, इस साल बारिश कम हुई ना, तो पक्षी भी नहीं आए और तालाब भी नहीं भरा। इन्हीं का आने का टाइम आ गया, पर अभी तक पक्षी नहीं आए। तो देखो, उनको या तो छोटे बंद नहीं लगा होगा, या हो सकता है बारिश कम हो, इस वजह से भी नहीं आ पाए। और हर साल आते हैं और बहुत सारे इन्होंने जो अपने घोंसले भी दे रखे हैं। इस साल तो खाली है और कुछ दिन में जो नज़र आते हैं, बाकी वो शायद अपना खाना वाना खा के भी चले जाते हैं। पिछले 5 सालों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ बराबर, और इसमें कोई दो राय नहीं है। गांव वाले बड़ा सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे इनकी संख्या बहुत अच्छी संख्या, मतलब जिसे कहते हैं तादाद में होती है। और 200 घोंसले से इनकी शुरुआत हुई थी यहाँ पे, और पिछले साल 400 घोंसले तक इनके, तो 400 घोंसले का मतलब ये कि 800 की संख्या में ये थे। और जब ये बढ़ते हैं तो 400 घोंसले का मतलब 1000 पक्षियों बच्चों का होना, कि हर 2 घोंसले के बीच में 5 बांध के चलते हैं हम लोग। तो खबर सादुलपुर से, जहां पुलिस ने हत्या और साजिश रचने वाले शातिर बदमाशों को दबोचा है। ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस ने 5 बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। लगभग 6 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को एक कामयाबी मिली। हालांकि एक बदमाश भागने में सफल रहा। एसपी परेश देशमुख के मुताबिक गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध पिस्टल, 1 देशी कट्टा और 6 कारतूस बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस सभी बदमाशों से पूछताछ कर रही है। कुछ हरियाणा के बदमाश हैं, जो यहाँ पे एक लोकल बदमाश है अनीश के कहने से आए हैं, और ये किसी एक व्यक्ति के साथ वारदात करने की फिराक में है। जिसके आधार पर एसएचओ हैवी मोबाइल के साथ वहाँ जाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। इतने में वो पुलिस की गाड़ी देखकर भागते हैं, जिनका पीछा किया गया। उसके बाद सीओ साहब राजगढ़ अपनी पूरी टीम के साथ, डीएसटी टीम के प्रभारी। खबर कोटा से। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल विकास कार्यों का जायजा शांति धारीवाल ने लिया। 1000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का निरीक्षण यूडीएच मंत्री ने किया। इलाज की व्यवस्था पर अब समीक्षा भी करेंगे।
और अब बात कोरोना की बढ़ती रफ्तार की। रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटों में 95,735 नए मामले सामने आए हैं और 1,172 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना वायरस के कुछ मामलों की संख्या करीब 44 लाख से भी ज्यादा पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 75,062 हो गई है। फिलहाल 9,19,018 बीमार लोगों का इलाज चल रहा है। भारत में कोविड-19 के 34,71,783 मरीज ठीक हो चुके हैं। मरुधरा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। आज 716 नए केस मिले हैं। राजस्थान में 7 लोगों की मौत हो गई है। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 96,452 तक पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 1,185 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद 78,203 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। प्रदेश में फिलहाल 15,807 एक्टिव केस हैं। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।